बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। So class, today we are going to discuss the numericals of chapter number 19, second year physics, and the name of the chapter is the atomic nucleus. Lecture by Sir Wajhat Afzal. So basically in this chapter we are going to discuss or solve these numericals. These are almost 7 numericals of chapter number 19, the atomic nucleus, BIEK. So in this you will have to solve these numericals. So I will solve all these numericals step by steps, and I categorize them according to their heading. For example, the first one is binding energy from 1 to numerical 4, and fifth one is Q value or release energy in the nuclear reactions, and 6a, 6b and 6c are the numericals of the half-lives, and the last one is of the mass defect. So class, in this slide, first of all you have to know the representation of an element, how element is represented in the nuclear physics or in the atomic physics. So here we have example that X is an element and A represents the number of proton plus number of neutrons. We also call it nucleons. So its also name is mass number or atomic mass. And the Z represents the atomic number or the number of protons in an atom. For example, we are provided with an example of carbon element, that carbon has 6 proton, so its Z is equal to 6, and it has 6 neutrons, so neutron plus proton, 6 plus 6 is equal to 12, so it has 12 atomic mass. So you have to know about the element, you have to determine the value of A and Z from each element. Second thing, there is a difference between the chemical reactions and the nuclear reactions. केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़े होंगे बेटा. केमिकल रिएक्शंस में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो बराबर होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के. बट इन न्यूक्लियर रिएक्शन दिस लॉ डज नॉट ओबे. Mass of reactant is always greater than the mass of product. Why? Because sum of its mass is converted into an energy. So that's why there is a major difference between the chemical reaction and nuclear reactions. In nuclear reactions, conservation of mass is not whole. So just keep it in mind. Now here we have some formulae related to half-lives. This is a very important formula. T half is equal to 0.693 divided by lambda, where lambda is the decay constant, and you have to learn this formula. Second important formula is the activity. Activity is equal to lambda multiplied by n, where n is the number of nuclei which are present at that time or which are going to be decayed, and lambda is a decay constant. And the third formula is the activity per week, but you have to solve this type of numerical with different way, and we have to follow the rules and regulations of the board and the scheme of board, how in the BIK scheme, solution schemes की how examiners solved it. तो यहाँ पे जो दो फॉर्मूले ब्रिंग कर रहे हैं, ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने याद करना है सही से. और इसके बाद इनके जो नीचे यूनिट कन्वर्जन्स गिवन हैं, ये MCQs में पूछी जा सकती है, तो इसको भी आप हल्का सा रीड कर लीजिएगा.
This is very famous law of radiative decay. N is equal to n naught e exponent minus lambda t, where n naught is the number of nuclei present at t is equal to 0, are called parent nuclei, and n is the nuclei which is left behind after decay, or called daughter nuclei. Lambda is the decay constant and t is the time in which the number of nuclei decay. So ये काफ़ी मशहूर फार्मूला है लॉ ऑफ रेडिएटिव डीके का, ये आपको याद करना होगा, लेकिन ये फार्मूला फ़िलहाल अभी जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें शायद ये यूज़ नहीं होगा, इतना इसका यूजेज नहीं. So the first formula is related to the half-life. I am going to solve the first problem is of problem number 5, which came in 2013 BIE. The number of atoms per gram of radon is 2.666 exponent 21 and it decay with half-life of 1622 years. Find the activity and decay constant of the sample. So here we have, these are the answers of these questions. So we are provided with n is equal to 2.666 exponent 21 atoms or nuclei. Its half-life is 1622 years. So we have to convert years into second because our SI unit is second. हमारा SI unit क्या होता है? सेकंड. तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम ईयर्स से पहले डेज में आएंगे, डेज से आवर्स में, देन मिनट, देन इनटू सेकंड. आफ्टर अप्लाइंग ऑल दीज वैल्यूज, 1622 years multiplied by 365 days, 24 hours, 60 minutes into 60 seconds, we finally get our half-life is very lengthy value 51151392000 seconds. So here we have to find out the activity, which is A, and the second thing is decay constant lambda. So in the solution, first of all I am going to solve its decay constants. For decay constant we use the formula of half-life, because we know that half-life is equal to ln2 or 0.693 divided by lambda, and equate this equation for lambda, we get ln2 upon t half. After placing their values, we finally get lambda is equal to 1.53 exponent minus 11 second inverse. So this is basically the decay constant of that given sample radon. Now you can copy this solution by pausing the video. Okay, now let's move toward the second part of this numerical. So we have to find out the activity. Question is continued. Again I am writing the data, but there is no need to write data again. So for n, activity is equal to A is equal to n lambda. We are provided with n and we have to find out the value of A. So placing the values of n and lambda, A is equal to 3.6 exponent 11 decay per second और disintegration per second, यानी इतने रेट पर अमाउंट नंबर ऑफ न्यूक्लिया जो है वो डीके हो रहे हैं. So this is our final result of this problem. Similarly, in question number 6a, it's also of the topic of half-life. The half-life of radon is 3.80 days. Find its decay constant. This is the answer of this numerical. In the data, the half-life is 3.80 days. So we convert days into seconds. So you multiply days into hours, into minutes, into seconds,
and finally we get our answer in seconds. So here we have to only find out the decay constant, that is lambda. Now in solution, again by applying the equation of half-life and equate this equation for lambda. लैम्डा के लिए जब हम इक्वेट करेंगे तो लैम्डा बराबर हो जाएगा ln2 द पाउंड टी हाफ. वैल्यूज प्लेस करने के बाद हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो 2.11 एक्सपोनेंट माइनस 6 डीके पर सेकेंड. After this, I am just going to discuss because the next numerical is related to the polonium element. So I am just giving the overview that Marie Curie and Pierre Curie also worked on the radioactive material uranium and successfully extracted two other new elements, radium and polonium, from that pitch blend or uranium 92. इनका ये काफ़ी अहम काम था जिस पे आगे जाके इन्हें रेडियोएक्टिविटी पे नोबेल प्राइज ही मिला था इन दोनों को, along with Henry Becquerel. So the next numerical of half-life is problem number 6b. The half-life of polonium is 140 days. Find its activity decay constant and by what percentage does its activity decrease per hour and per week. So in the first solution I am going to solve activity decrease per hour, and in the second solution, the second slide, I am going to solve this for activity decrease per week. तो पहले बेटा हम लोग यहाँ पर activity decrease per hour solve करेंगे और फिर सेकेंड पार्ट में हम activity decrease per week करेंगे. तो यहाँ पे डेटा पे सबसे पहले आ जाते हैं. पोलोनियम एलिमेंट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा. परसेंटेज एक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला शीट में आपको नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे BIK के में भी हमें इसको एक लेंथी प्रोसेस से सॉल्व करना पड़ता है डेरिवेशन की फॉर्म में, और आपको इसी प्रोसेस को ही यहाँ पे फॉलो करना होगा. तो डेल्टा A/A इन परसेंटेज आपको फाइंड करना है जो कि एक्टिविटी डिक्रीज कहलाती है. अब हम इसको पर आवर में मालूम करना चाह रहे हैं, तो हमें टी हाफ यानी हाफ लाइफ को डेज से किस में कन्वर्ट करना होगा, आवर्स में. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सॉल्व द अंडरलाइन क्वेश्चन एक्टिविटी डिक्रीज पर आवर. तो टी हाफ हमारे पास 140 से जब हम आवर्स डेज में आवर्स में आएंगे तो हम उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारे पास हाफ लाइफ कितनी आ गई, 3360 आवर्स. डेल्टा टी इज द रेट for which we are going to solve it. So we are going to solve per hour. So per hour means 1 hour. डेल्टा टी हमारे पास यहाँ पर 1 आवर है. सोल्यूशन पे आते हैं. सोल्यूशन इसका ज़रा सा लेंदी है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा. सबसे पहले अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ एक्टिविटी, A is equal to n lambda, and if we am going to change the activity and the number of nuclei, formula will become delta A is equal to lambda delta n. Lambda is a constant, so lambda में कोई चेंज नहीं आएगा. एक्टिविटी और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में चेंज आएगा. उसके बाद हम इक्वेशन 2 और 1 को आपस में डिवाइड कर देंगे. देन वी गेट डेल्टा A अपॉन A लैम्डा डेल्टा n लैम्डा n. लैम्डा से लैम्डा यहाँ डिवाइड हो जाएगा. फाइनली हमारे पास ये ब्लू शेड में रीजन में हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, डेल्टा A अपॉन A डेल्टा n अपॉन n. सो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि एक्टिविटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एक्टिविटी, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का चेंज विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ओरिजिनल जो प्रेजेंट थे वो बराबर होता है फॉर्मूले. इनका ग्राफ भी तकरीबन सेम बनता है, ओवरलैप्ड होते हैं. बट वी नो, अब हम यहाँ पर डेल्टा n अपॉन n की वैल्यू प्लेस करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके. डेल्टा n अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डेल्टा टी. यहाँ माइनस का साइन होता है लेकिन न्यूमेरिकल में हम नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देते हैं. एंड वी ऑल्सो नो दैट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ हाफ लाइफ दैट लैम्डा इज इक्वल टू ln2 अपॉन टी हाफ. तो इस ln2 अपॉन टी हाफ की इक्वेशन को बेटा मैं इस ग्रीन शेड वाली इक्वेशन में रखूँगा, जिससे ये ग्रीन शेड वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा n अपॉन n ln2 अपॉन टी हाफ डेल्टा टी.
अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है फाइनली, इस इक्वेशन को हम रखेंगे ब्लू रीजन वाली इक्वेशन में। तो जो ब्लू हाईलाइटेड इक्वेशन है वो अब हमारे पास क्या बन जाएगी, डेल्टा ए अपॉन ए ln 2 अपॉन टी हाफ डेल्टा टी। यही हमें फाइंड करना था। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। एंड आफ्टर प्लेसिंग द वैल्यूज वी फाइनली गेट द एक्टिविटी डिक्रीज पर आवर इज 0.000206 बट नॉट इन परसेंटेज। परसेंटेज में कितनी आ जाएगी, 0.026% पर आवर। तो इस अमाउंट से एक्टिविटी जो डिक्रीज होगी वो किस हिसाब से होगी, पर आवर डिक्रीज होगी। This is very difficult question and you have to solve the whole question with the same method, with the same techniques and with the same steps. And you can also write the law which we have used in this solution. Okay, now the next part of this question. So in the next part, the same question, now we are going to solve it's for activity decrease per week. So the activity decrease per week. So again, percentage activity delta A upon A in percentage we have to find out for decrease per week. So here we have to convert, अब हमें हाफ लाइफ को 140 डेज से वीक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो हमें 140 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम किस में आ जाएंगे, वीक्स में आ जाएंगे। तो हमारे पास 140 डेज में 20 वीक्स बन रहे हैं। देन डेल्टा टी, यहाँ पर जैसे लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में वी हैव डेल्टा टी इज़ 1 वीक 1 आवर। सो हेयर वी हैव डेल्टा टी इज़ 1 वीक बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर इट्स पर वीक. Now in solution again you have to follow the same procedure which you have followed in the last question. Delta A is equal to n lambda. This is the equation of activity. In term of change, delta A is equal to lambda delta n. Now dividing equation 2 by 1, we get this, and again the blue equation. Now applying using the law of radioactivity, delta n upon n is equal to minus lambda delta t, but neglecting this negative sign. And we also know that the half-life lambda is equal to ln2 upon t half. Now put this equation into a green highlighted equation. So this equation will become delta n upon n ln2 upon t half delta t. Okay, neglecting the negative sign. Now put this equation into a blue equation. We get delta A upon A ln2 upon t half delta t. Multiply by 100 in order to convert it into percentage. Putting the values of all given variables, and finally we get delta A upon A is equal to 0.03465. In percentage is a 3.465 percentage per week. So the activity of polonium decrease per week is 3.465 percentage decrease per week. So this is very important and difficult question of this chapter. Okay, now class, now we are moving towards a new topic of the mass defect. So mass defect is a very important concept in the nuclear physics, because we have read that in nuclear reactions mass of reactant and product are not same, but the mass of reactant is greater than as compared to the mass of product. और वो जो मास में कमी आती है उसी मास को हम क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं. मास में जो कमी आती है, ज़ाहिर सी बात है एक मास ज़्यादा एक मास कम है, उसी मास से हमारे पास जो न्यूक्लियस बनता है, जो यानी कि न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स को, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को जो बाउंड करता है एक शेल के अंदर, एक रीजन के अंदर, एक, उससे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं.
तो न्यूक्लियस जो बनता है यानी कुछ बाउंड करने के लिए एक रीजन बनता है, उसी एनर्जी या मास डिफेक्ट से ही आती है। इस मास को वो इन पार्टिकल्स में से ही लेता है और से एनर्जी में कन्वर्ट कर न्यूक्लियस बना देता है। तो अगर हमें किसी न्यूक्लियस को तोड़ना है तो हमें इतनी ही एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी होगी। सो बेसिकली मास डिफेक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इसके, और नीचे कुछ एटॉमिक यूनिट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि 1 U और 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम यानी प्रोटॉन के मास के बराबर होता है किलोग्राम में, और एनर्जी में किसके बराबर होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ ड्यूट्रॉन भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं, यू कैन सी दिस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला विच इज़ हाईलाइटेड बाय रेड रीजन, जो रेड कलर से ब्लिंक कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है मास डिफेक्ट का। सो मास डिफेक्ट इज बेसिकली, आई एम रीडिंग इट अगेन, so mass defect is basically the mass of nucleons in the free state minus mass of the nucleus of the product. So delta m is equal to mass of nucleons minus mass of nucleus, और mass of nucleons किसके बराबर होता है बेटा, z यहाँ पर है आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, mp मास ऑफ प्रोटॉन को, प्लस कैपिटल N इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दैट एलिमेंट और एटम, एंड mn यहाँ पर बता रहा है मास ऑफ द न्यूक्लियस को, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। mn यहाँ पे आपको बता रहा है मास ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी। सो यू हैव टू रीड दिस फॉर्मूला वेरी केयरफुली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। And this is very important slide of the formula. You have to write all formula separately. सारे फॉर्मूलों की सारे आपने प्रैक्टिस पहले करनी होगी, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आना होगा। पैकिंग फ्रैक्शन डेल्टा m अपॉन a, बाइंडिंग फ्रैक्शन BE अपॉन a, so here I am showing a conversion of mass into energy or conversion of kilogram into mega electron volt. For this I take an example of conversion of the mass of the electron into mega electron volt. हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मास को या एक पार्टिकल के मास को किस में कन्वर्ट करना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। ये हमें न्यूमेरिकल में आगे यूज़फुल होगा, काम आएगा। तो मैं ऐसे ही एक रफ वर्क के तौर पे आपको ये बता रहा हूँ। It's a rough work, it's not a fair work, so you have to practice it separately. So for this आपको क्या करना होगा, firstly convert mass kilogram into energy or joule. So applying the famous equation of Einstein, E is equal to mc square. In this equation mass is 9.1 exponent minus 31 kilogram and c is the speed of light, its value is 3 exponent 8 meter per second. Putting the values we get our answer in joule. So 8.19 exponent minus 14 joule is our answer. तो यहाँ पे हमने मास को किस में कन्वर्ट कर लिया है, एनर्जी में, लेकिन हमें इस एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। सो हमारा अभी तक आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। नाउ कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हम इसको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे डिवाइड कर देते हैं जूल को with the amount of charge of an electron or proton, which its value is 1.6 exponent minus 19 coulomb. So by dividing the value of joule with the charge of an electron, we get our answer in electron volt. So its answer is 5.11875 electron volt. Now to convert into a million electron volt or mega electron volt, divide the above value with exponent 6 because millions mean exponent 6. Dividing the above value with exponent 6, we get our answer in mega electron volt. This is 0.51187 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर बेटा मैंने आप लोग को यहाँ बताया, जिससे आप किसी भी किलोग्राम को
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं. It's a rough work, it's not a fair work, but we have to use this whole procedure in our next numerical. So in this numerical, this is related to a topic of mass defect and binding energy. मास डिफेक्ट मैंने आपको बताया पहले भी. मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है या न्यूक्लियर डीके होता है तो वहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियाई से जो डॉटर न्यूक्लियाई बनता है, डॉटर न्यूक्लियाई का मास हमेशा कम आता है और पेरेंट न्यूक्लियाई का मास हमेशा ज़्यादा होता है. इनके मास में जो कमी आती है उसी को हम मास डिफेक्ट या मास डेफिसिट कमी कहते हैं. और इस मास को अगर हम c² से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक बाइंडिंग एनर्जी मिलती है या वो न्यूक्लियस की एनर्जी मिल जाती है. सो इन दिस न्यूमेरिकल इज अ टोटल डिफरेंट न्यूमेरिकल. अ ड्यूट्रॉन इज फॉर्म व्हेन अ प्रोटॉन and a neutron combine. Calculate the mass defect and binding energy in mega electron volt. तो इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि एक न्यूट्रॉन जिसका मास गिवन है आपको 3.3431 एक्सपोनेंट -27. एक और अहम बात, न्यूक्लियर फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आपको वैल्यूज़ जो है वो पॉइंट के बाद तकरीबन डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस यूज़ करने होंगे, 4 डिजिट्स. तो इसमें कोई कमी पेशी मत करिएगा वरना आपके आंसर में बहुत फ़र्क आ जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा. तो ड्यूट्रॉन यहाँ पे बेटा फॉर्म्ड हुआ है, यानी कि ड्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड, दैट मीन्स न्यूट्रॉन इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. तो ड्यूट्रॉन शुड बी अ प्रोडक्ट क्योंकि ये बना है. कब बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने पर. ओके, सो नाउ आई एम राइटिंग द डेटा. दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द एंड. सो मास ऑफ अ ड्यूट्रॉन इज md और वी कैन राइट H1 and its atomic mass is 2. 3.313 exponent -27 kilogram. Mass of proton is H11 1.6724 exponent -27 kilogram and mass of neutron is Mn. इसको हम 0 and 1 लिखते हैं. 0 का मतलब इस पे चार्ज को 0 होता है और इस पर मास स्टेट होती है इसकी, तो इस पर हम मास की जगह 1 लिख देते हैं. 1.6748 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम. सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द मास डेफिसिट इन किलोग्राम एंड बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट डाउन दिस इक्वेशन ऑन न्यूक्लियर डीके. सो यहाँ पे हुआ क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्यूज्ड हुए हैं और उन्होंने क्या बना है? ड्यूट्रॉन बनाया है. तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमारे पास रिएक्टेंट है और ड्यूट्रॉन जो है वो प्रोडक्ट है. तो क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे किन चीज़ों का मास ज़्यादा होगा और किन का मास कम होगा? तो अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटॉन यानी कि रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होता है और प्रोडक्ट का मास कम होता है. तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर ग्रेटर होगा किससे? मास ऑफ न्यूट्रॉन से. और इनके मासेस में जो फ़र्क होगा उसी से हमें मास डिफेक्ट मिलेगा माइनस करने पर. सो फॉर डेल्टा एम मास डिफेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन न्यूक्लियर रिएक्शन. सो यू नो दैट द sum of the masses of reactants, all reactants, there may be 1 or 2 reactants, is greater than sum of the masses of products. So mp mass of proton plus mass of neutron, these are the reactant in this numerical or in this equation, should be greater than mass of neutron md. So mass defect क्या बनेगा कि हमें mass of proton plus neutron में से किसको माइनस करना होगा? ड्यूट्रॉन को. तो ये कितने इससे बड़े हैं या कितना इनके मासेस का फ़र्क है हमें वो मिल जाएगा. ऑलवेज रिएक्टेंट में से हम प्रोडक्ट को माइनस करते हैं. आफ्टर प्लेसिंग दियर वैल्यू वी गेट आवर आंसर 4.1 एक्सपोनेंट -30 किलोग्राम. अब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एम जो है वो किलोग्राम में आया है. मास डिफेक्ट दो तरह से आंसर आपको मिलता है, एक आपको किलोग्राम में मिलता है और एक आपको एटॉमिक मास यूनिट में मिलता है. तो दो तरह के न्यूमेरिकल होते हैं इसके. अभी हम फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल कर रहे हैं जिसमें मास डिफेक्ट आपको किलोग्राम में मिला है.
Okay, now again we have to find out its binding energy. So this is the rough work which I have discussed earlier in the previous slide, so I am not going to discuss it again, so you have to go through this. So हम यहाँ पे इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए मास को किस में कन्वर्ट करेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करेंगे. सो फॉर बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ़ मास इन किलोग्राम, अगर मास किस में है, किलोग्राम में. अगर मास AMU में होता तो ये बहुत इजीली न्यूमेरिकल हो जाता, लेकिन मास यहाँ पर kg में है, तो इसको हमें थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस से सॉल्व करना होगा. बाय यूजिंग आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन E = mc², and you know the value of m is given over there, and multiply with the value of speed of light square, we get the energy 6.69 exponent -13 जूल. लेकिन ये जूल में आया है, आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है. सो टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिवाइड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम. हम इसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2306250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड फाइनली into million electron volt, we divide the above electron volt equation with exponent 6, and finally we get our final answer or the binding energy, that BE = 2.306 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पे हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का फाइनल आंसर आ चुका है. Okay class, now I am moving towards the new numericals of the binding energy and mass defect. So here अभी हमने जो न्यूमेरिकल किया था जिससे बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट हमारे पास जो थे वो मास डिफेक्ट किलोग्राम में था, जिससे फिर हमने बाइंडिंग एनर्जी निकालने का तरीक़ाकार क्या था वो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपको मास डिफेक्ट को c² से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, जिससे आपका आंसर जूल में आता था. फिर आप उसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी प्रोसेस अप्लाई करते थे, you know it very well. And the second thing, the second important formula is over there is, अब जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे आपके पास जो मास होगा, यानी कि मास डिफेक्ट जो आएगा वो एटॉमिक मास यूनिट में आएगा, बल्कि किलोग्राम में नहीं होगा. तो वहाँ पर मास डिफेक्ट जब आप निकाल लेंगे बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ मास डिफेक्ट इन AMU, तो उससे जब आप बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है कि आप उस मास डिफेक्ट जिसकी वैल्यू AMU में है, इस ग्रीन रीजन को ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, रेड रीजन की बात हो चुकी है. तो जब आपके पास मास डिफेक्ट AMU में होगा तो AMU से बेटा आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आप डायरेक्ट उसको एक क्वांटिटी 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो मास डिफेक्ट आपके पास AMU में है, जिससे आपका आंसर डायरेक्टली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा इजी कहलाता है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस न्यूमेरिकल. इसमें आपको मास किलोग्राम में नहीं AMU में गिवन होगा इजीली आप, और ये डेटा गिवन होता है न्यूमेरिकल में एग्जाम में, तो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर लेंगे. सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट फार्मूला ओवर देयर. After this we are using the above two formula, packing fraction and binding energy, because इन दोनों में मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी यूज़ हो रहे हैं. ए जो है इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन नंबर्स को. वही क्लास. Okay class, so in this numerical, this is problem number 1 or problem number 2, both are almost same. Find the binding energy and packing fraction of tellurium given that. यहाँ पे हमें एक एलिमेंट गिवन है टेलोरियम, जिसको आप देख सकते हैं TE से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसका एटॉमिक मास 126 है और एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसके पास 52. आगे गिवन है गिवन दैट मास ऑफ प्रोटॉन MP का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन कितना है आपको 1.0078 U का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट. आगे Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है आपको 1.0086 U, कॉमा अभी तीसरा जो आपको गिवन है यहाँ पर लास्ट में, ये मास ऑफ टेलोरियम न्यूक्लियस गिवन है जो कि आखिर में बना है. सो MTE इज दी 125.9033
एटॉमिक मास यूनिट। इस कंडीशन पे बेटा हमें क्या मालूम करना है, फाइंड दी बाइंडिंग एनर्जी एंड पैकिंग फ्रैक्शन। सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। तो यहाँ पे वो एलिमेंट जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको स्टार्टिंग की स्लाइड में बताई थी वही यूज़ होगी। ये इसके आंसर्स हैं, आगे हम इसको देखते हैं। सो एटॉमिक मास बेस यू नो वेरी वेल, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ए कितना है हमारे पास 126, इसको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। चार्ज नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हमारे पास 52 हैं, एलिमेंट में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, Z 52 है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मुझे निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, A माइनस Z करने से हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे जो कितने आ रहे हैं 74। ये प्रोसेस सारा आपने खुद करना होगा, एग्जाम में ये गिवन नहीं होता डेटा। Now the mass of proton which is given in the data, you can write it in atomic mass unit, mass of neutron and the mass of nucleus. So ये हमारे पास डेटा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर इस न्यूमेरिकल्स में न्यूक्लियर फिजिक्स के सबसे पहले बेटा हमें मास डिफेक्ट फाइंड करना होता है। उसके बगैर ना बाइंडिंग एनर्जी आएगी ना और चीज़ें फाइंड की जा सकती हैं। So first of all you have to find out the mass defect and mass defect in AMU because सारी चीज़ें आपको यहाँ पर AMU में गिवन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस में गिवन है, AMU में, और न्यूक्लियस भी AMU में गिवन है, तो यहाँ पे मास डिफेक्ट भी आपके पास AMU में आएगा। Then you will find out the binding energy and then we are going to find out its packing fraction which is delta M upon A। तो यहाँ तक आई होप आपको डेटा समझ आ गया होगा। ये डेटा सारा आपने एज इट इज लिखना होगा। ओके, नाउ इन सॉल्यूशन फॉर डेल्टा एम यू नो वेरी वेल that the delta M is equal to mass defect is equal to mass of nucleons minus mass of nucleus, and you know very well mass of nucleon is Z multiplied by MP plus N multiplied by Mn minus mass of nucleus MTE। इनकी वैल्यूज रखने पर आपको जो है Z की वैल्यू 52 है, मास ऑफ प्रोटॉन AMU में 1.0078 प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हमारे पास 74 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन्स 1.0085 माइनस 125.9033। तो यहाँ से हमें डेल्टा एम मिल जाएगा AMU में। डेल्टा एम किस में मिला है, AMU में मिला है, किलोग्राम में नहीं मिला है, इस बात का ख्याल रखा जाए। नाउ बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने से पहले मैं आपको दोबारा एक इसका रफ स्केच दिखा रहा हूँ जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मूला दिखा रहा हूँ दोबारा। नाउ यू सी अगेन द फॉर्मूला। In the red blinking highlighted the equation in mega electron volt if m is in AMU। अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी किस में निकालनी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, और मास किस में हो AMU में हो, तो उसको क्या करना होता है बेटा, डायरेक्ट 931.5 से मल्टीप्लाई करना होता है और आपका आंसर डायरेक्ट किस में आता है, बाइंडिंग एनर्जी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है। For binding energy, you know very well, multiply the delta M mass defect in AMU with the factor 931.5 and you will get your answer 1060.699 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्ट मिल गई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और किलोग्राम वाला जो प्रीवियस न्यूमेरिकल था उसमें आपने जितना एक लेंदी प्रोसेस किया था, पहले उसे जूल में कन्वर्ट किया, जूल से फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किया, फिर उससे आपने उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किया था। लेकिन यहाँ पे आप AMU में अगर आपको मास डिफेक्ट गिवन हो तो आप उसे डायरेक्ट 931.5 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैकिंग फ्रैक्शन। ये अब हमारे पास लास्ट होगा। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा M अपॉन A। इनकी वैल्यूज रखने पर आपको पैकिंग फ्रैक्शन कितना मिल जाएगा, 9 एक्सपोनेंट -3। अब डेल्टा एम का यूनिट जो है AMU है तो वो मैंने U लिख दिया है, और A का यूनिट जो है वो न्यूक्लियॉन्स होता है, तो उसका यूनिट आप चाहें तो ये लिख दें U अपॉन न्यूक्लियॉन्स। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 and 2 बोथ आर
covered. Their result is, you can see, okay class, now in the numerical number problem number 3, it's also of the topic of mass defect and binding energy. In this numerical you are provided with the element of sodium. Find the binding energy per nucleon in mega electron volt of sodium element. और आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस यहाँ गिवन है और लास्ट में मास ऑफ सोडियम न्यूक्लियस भी गिवन है जिसकी वैल्यू 22.989 AMU गिवन है. इसके आंसर्स ये हैं जो कि हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे इनके आंसर्स को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गोइंग टू फाइंड आउट द एटॉमिक मास. आपको सोडियम गिवन है Na11 और जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास 23 है. तो आपको पता है एटॉमिक मास आपके पास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ए कितना है 23. ये आपको खुद लिखना होगा डेटा में से. चार्ज नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आपके पास 11 है. इससे आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं. एन कितना हो जाएगा a माइनस जेड. तो 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12 हो गया. नेक्स्ट थिंग इज मास ऑफ अ प्रोटॉन, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूक्लियस. ये तीनों चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में गिवन है. यहाँ से आप इसको फिल कर लेंगे. मास ऑफ न्यूक्लियस अब सोडियम है तो m सोडियम Na कितना हो जाएगा 22.9890 U. आई रिपीट, इन न्यूमेरिकल्स में आपने डेसिमल के बाद जितनी भी प्लेसेस 4 तकरीबन गिवन होती हैं तो चारों की चारों यूज़ करनी होंगी क्योंकि उन्हीं वैल्यूज से माइन्यूट सा चेंज आ रहा होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गोइंग टू फाइंड आउट द मास डिफेक्ट, देन binding energy in mega electron volt. By repeating the same process in the previous numerical and binding fraction of binding energy per nucleons. तो यहाँ पे इसका डेटा कंप्लीट हो जाता है क्लास. In this slide we are going to discuss its solution. For delta m, again you know mass defect is equal to mass of nucleons minus mass of nucleus, and the mass of nucleon is Z mp plus n mn minus mass of nucleus. Values रखने पर 11 multiplied by 1.0078 plus 12 multiplied by 1.0086 minus 22.9890. मास डिफेक्ट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0.2 AMU. ठीक है. अब अगेन हम इस मास डिफेक्ट से क्या निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी का तरीक़ाकार क्या होगा कि हम इस वैल्यू को 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मास डिफेक्ट किलोग्राम में नहीं AMU में है. इस बात का ख्याल रखा जाए. सो बाइंडिंग एनर्जी विल बिकम 186.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पे हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी, इसको हम Q वैल्यू भी कह देते हैं, रिएक्शंस में आ चुकी है. So now for binding fraction of binding energy per nucleons, binding energy upon A is equal to, इनकी वैल्यूज रखने पर 186.3 डिवाइड बाय 23 क्योंकि A की वैल्यू 23 है. हमारे पास बाइंडिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 8.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन्स. ये हमारे पास इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का आंसर आ चुका है. ये इनके फाइनल आंसर्स हैं. आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं. अपने तीनों आंसर्स हमारे सही आ रहे हैं. रिजल्ट okay, now in this question, this is the last question of this chapter, बाइंडिंग एनर्जी एंड Q वैल्यू. हम इसको Q वैल्यू भी कहते हैं. इस न्यूमेरिकल में हमारे पास 2018 में आ चुका है सवाल BIE के में. फाइंड द Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन ऑफ प्लूटोनियम डीके हुआ है जिसमें यूरेनियम में और अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकला है और प्लस कुछ एनर्जी निकली जिसको हम Q वैल्यू कह रहे हैं. तो ये आपके पास डेटा में जब हम आते हैं, डेटा गिवन है, डेटा बना लेते हैं. ये इसके आंसर्स हैं.
सबसे पहले डेटा में हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे कि प्लूटोनियम जो है वो डीके हुआ है या टूटा है किसमें, यूरेनियम में, और अल्फा पार्टिकल लिमिट हुआ है यहाँ से, प्लस कुछ एनर्जी भी रिलीज हुई है जिसको हम क्यू वैल्यू या बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। ये हमें मालूम करनी है। तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट इट्स मास डिफेक्ट, देन वी विल डिस्कस अबाउट दी बाइंडिंग एनर्जी एंड क्यू वैल्यू। सो इस इक्वेशन में आपके पास मास ऑफ प्लूटोनियम गिवन है, कितना है वो MPU, हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। इसकी वैल्यू है न्यूमेरिकल में गिवन है, ध्यान से लिखिएगा वैल्यू को, 239.0522 AMU। मास ऑफ यूरेनियम कितना गिवन है, 235.0439 U। मास ऑफ हीलियम कितना गिवन है आपके पास, 4.0026 U। MHE से इसको रिप्रेजेंट किया है। Now first of all we are going to find out its mass deficit or mass defect in AMU, then binding energy or Q value will be determined easily. So now again in this equation, using this equation, applying the law of conservation of mass, you know in the nuclear reaction रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट का मास कम होता है, तो मास ऑफ प्लूटोनियम ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ हीलियम। तो रिएक्टेंट के मास में से हम प्रोडक्ट के मासेस को माइनस कर देते हैं, मास ऑफ प्लूटोनियम माइनस मास ऑफ यूरेनियम प्लस मास ऑफ हीलियम, तो हमारे पास मास डिफेक्ट आ जाएगा। वैल्यूज रखने पर मास डिफेक्ट की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 0.0057 AMU। तो ये हमारे पास इस प्लूटोनियम जो डीके हुआ है, यूरेनियम और अल्फा पार्टिकल निकला है, उसमें कितना मास जो है वो लॉस हुआ या मास डिफेक्ट हुआ, उसकी वैल्यू कितनी आई है, 0.0057 AMU। अब इस वैल्यू को मदद से हम क्या करेंगे, हम बाइंडिंग एनर्जी या क्यू वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, यू नो वेरी वेल। सो नाउ for Q value we multiply delta M with the value of 931.5, तो हमें बाइंडिंग एनर्जी या Q वैल्यू मिल जाएगी। डेल्टा M कितना था, 0.0057 AMU, उसको 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास Q वैल्यू कितनी आ गई, 5.30955 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिंपली वी कैन से दैट Q value is 5.3 mega electron volt, which is our required result or required answer. So students, I hope you will get it easily. आपको समझ आ जाएगा आसानी से। ये सारे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 19 के यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप आसानी से कर सकते हैं इसको देख के, वीडियो को देख के। और सबसे पहले न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले बेटा फॉर्मूले इजीली फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको फॉर्मूले जो अप्लाई किए जा रहे हो और इसकी जो मैंने कैटेगरीज बना के इसको सॉल्व किया है उसमें सोल्यूशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जब आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको दोबारा कहीं प्रॉब्लम हो तो वहाँ से इसको समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। थैंक यू क्लास। यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। चैप्टर नंबर 19 के सारे न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए ऑलमोस्ट। अल्लाह हाफिज़।